मुझे आप बात कर दो जरा सबसे फोन पे जाओ, जरा फोन पे बात कर लेना, आप बात करो ना, मुझे फोन पे लगाना, फोन पे लगाओ अपने आप। हेलो, ये कौन है? मैडम कौन है? ये कौन है क्या? अरे रुको, मेरा फोकस I can't see myself on the screen पे मेरे Is my voice audible to everybody, all the participants? Yes, ma'am. Okay. Honorable Resource Person, Dr. D.P. Uniyal, respected Principal, Professor V.A. Borai, all the faculty members, and my dear students. On behalf of the Department of English, SGRR PG College, I welcome all of you to the one-day national seminar on funding mechanism, project writing, and intellectual property rights awareness. We are fortunate to have with us an experienced and a learned scholar, Dr. D.P. Uniyal, who is Joint Director of Uttarakhand State Council for Science and Technology, Government of Uttarakhand. He today will be delivering his talk on the funding of projects, the skills required for project writing, and the significance of learning about intellectual property rights, IPR. Talking about the need to learn about IPR is increasing with the increase in focus on innovation, research, and cross-border collaboration. If the innovations are patented and taken up for commercialization, it will definitely prove to be a competitive advantage for all the investors and the entrepreneurs. Now, to introduce you to our resource person for the day, Dr. D.P. Uniyal. He has more than 23 years of research experience in the fields of taxonomy and ecology, of the fish fauna of northern India, water quality monitoring, remote sensing, and geographical information studies application and science. He has worked in the Zoological Survey of India for 10 years and conducted a lot of field studies in the Trans-Himalayas, the Himalayas, J&K, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, and parts of Madhya Pradesh. He has successfully completed 14 major research projects. In addition to this, he has published 58 research papers, national and international, in journals, conferences, seminars, and symposia. He has authored a book and also edited several books, and he has many project reports to his credit. Besides, he has also organized and coordinated 63 national and international conferences and 4 training courses. He has delivered several lectures in most of the prestigious institutions, including Food and Agricultural Organization, Italy, and the University of Dresden, Germany. Also, the member of scientific bodies like National Academy of Science, India. He is an expert group member of the DST, the Uttarakhand Biodiversity Board, Uttarakhand Pollution Board, and also he is also a reviewer in the various national and international journals. Now, I would like to invite our principal, SGRR PG College, Professor V.A. Borai, to welcome us all and address us with his kind words. Sir, can you hear me? Hello. Yes, hello, sir. Yes, we can hear you, sir. I'm V.A. Borai, Principal, Shri Guru Ram Das College, Dehradun. Today, our college has a very important webinar for teachers, for students, and for other scholars. And Dr. Uniyal, who is a scientist, Director General, Deputy Director General of UCOST, Uttarakhand, he is giving a lecture. I think he is well experienced person. His lecture is very important for every teacher, especially new faculty members who are joining the institutions,
and research students, because he will talk about how projects is to be written, how the projects are to be made, how the projects are to be submitted, how the budgeting is to be done. So this is very important issue, because in DSP, PBT, UGC, and other funding agencies, more or less the things are same. So I'm highly thankful to Dr. Nial, who is sparing his time to teach, I think, approximately 100 people on this webinar today. Thank you, sir. Now I will hand over the screen to our resource person for the day, Dr. D.P. Unyal, and request him to speak to us about his ideas on the concerned topic. Dr. D.P. Unyal, sir. Dr. D.P. Unyal, sir, is my voice audible to you? आपको आवाज आ रही है प्लीज? Now I would request आ रही है। Now I would request D.P. Unyal, sir, to please give his talk on the concerned topic. Thank you very much, ma'am. It's a matter of great pleasure for me to be with all of you. As Shri Guru Ram Rai Education Mission and College is like a family for me, because my better half, my wife, served this college for more than 11 years in Department of Zoology and University. And during that time, I got an opportunity to interact with a lot of faculty members, students, and especially principal, sir, to whom I know for last so many years. And I got an opportunity to deliver lectures under IQAC, and then taking a Viva, and many times we have organized our academy programs in college number of times. So it's like a family for me, and I like to compliment Professor V.A. Borai, sir, for elevating this Guru Ram Rai College to a greater extent. And I have witnessed the progress of this college, that getting a NAC accreditation, and then renovating our college, getting a lot of inspired students under your college. So it's a pleasure for me being as a family member. Connect. माइक सर, माइक बंद कर मैडम को। माइक बंद उन्होंने किया सर। कैसे बताओगे? वो उनको टेक्स्ट करके हेलो। खुली आपकी? हाँ सर। हाँ सर। आपने माइक ऑफ कर दिया था आपने? जी आवाज आ रही है सर? तो अब आ रही है, आपसे गलती से माइक ऑफ हो गया था आपका। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आवाज आ रही है। आ रही है। ओके सर, ओके, राइट, कीप दिस, ठीक है।
Right, sir. Thank you, sir. Technical glitches. Sorry for that. So I like to compliment principal sir for elevating this college and getting a NAC accreditation, and I witnessed positive changes in college, and I'm looking forward to have such more interactions in near future also. So I like to compliment principal sir and again all the faculty members and students of college, those who are here, and dear participants. जैसा मैडम ने भी मैं जूलॉजिकल सर्वे सर किया, उसके बारे इकोसिस्टम्स में या बहुत सारे, इसके बाद और शेयर करूंगा कि जो मैंने गैदर किया रहकर एज ए रिसर्चर और हाँ सर, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए अपनी और बोलते रहिए ना, आप पीपीटी तो दिखाई रहे हैं हमें, उससे स्पीड ठीक आएगी। स्पीड ठीक होगा ना। माइक। हेलो उनियाल सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? उनियाल सर, आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, ऑडियो ऑन रखिए, तब नेटवर्क इशू प्रॉब्लम नहीं आएगा कोई भी। जी लैपटॉप से करना है वो तो दिखाई। हाँ सर, सुन पा रहा हूँ सर, प्लीज मैं सुन पा रहा हूँ। बढ़िया आ रहा है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ठीक आएगी। जी सर, ठीक है सर, बढ़िया आ रहा है, सुनाई दे रहा है, आप बोलिए सर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि प्रोजेक्ट राइटिंग के साथ साथ जो पेपर आप कैसे लिखना चाहिए, although every faculty members having vast experience as well as now it's an opportunity. सर डिस्कनेक्ट मैडम क्या करना है? सर क्या करना है समझ नहीं आ रहा मुझे। तो ये उनको ये बोलो कि वाकई वीडियो ही ऑफ कर दो, तो ज्यादा बेटर है ना। उनको टेक्स्ट कर दो, टेक्स्ट पर चैट डिस्कनेक्ट हो गई सर, नॉर्मल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट अभी तो हो रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारी पार्ट से गलती है। हां नहीं वो तो सही है, लेकिन हमारे तो जुड़े हुए देखो, सारे जुड़े हुए नेटवर्क इशू। माइक्रोफोन की कोई प्रॉब्लम है? सर आ गए थे।
Dr. DP Unyal, sir. सर ना जहाज में बैठे हैं, फोन करो मैडम सर को। फोन करूं? आपका फोन जो हाँ बैठो हाँ सर आप शुरू कीजिए। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो डॉक्टर उनियास, करना पड़ेगा। आवाज इको हो रही है सर। चेक कर लिया ना। हेलो सर, डॉक्टर उनियाल मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर पढ़लिया सर, आपकी आवाज इको हो रही है। हाँ सर, जी 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 जी। डॉक्टर उनियाल मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना स्क्रीन स्लाइड शो से स्टार्ट करें। डॉक्टर उनियाल सर। सर डॉक्टर उनियाल अपना माइक अनम्यूट करिए। जी सर, अनम्यूटेड है सब। ठीक सर आइए। आवाज आ रही है साहब? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। Sorry for all this glitches. Actually, बीच में आ रहा था host unmuted or something like that. Maybe we are in a right now learning stage, all of us. So sorry for this. सर स्टार्ट शो में ना, स्टार्ट शो से फ्रॉम बिगनिंग से स्टार्ट कर दीजिए। जी सर स्लाइड को बड़ा कर लीजिए आप। हाँ स्टार्ट स्लाइड शो में। यस सर, ठीक है। थैंक यू सर। सो इसमें फैक्ट शीट अबाउट द प्रोजेक्ट राइटिंग, साथ साथ में जो प्रोजेक्ट राइटिंग है उसके साथ साथ कैसे पेपर लिखना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल पे, और आईपी रिलेटेड जो इश्यूज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसको कि बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चाहे हम साइंस को परस्यू कर रहे हैं, रिसर्च को, चाहे हम ह्यूमैनिटीज को परस्यू कर रहे हैं या हम इनोवेशन को परस्यू कर रहे हैं, किसी भी चीज को परस्यू कर रहे हैं, आजकल बौद्धिक संपदा अधिकार जिसको कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं, उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। मैं आपको शेयर करूंगा किस प्रकार से जो हम लोग रिसर्च करते हैं, जितने भी अब फंडिंग एजेंसीज हैं वो लोग या जितने भी इंटरनेशनली फंडिंग देते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट दे चाहे गवर्नमेंट दे, वो ये कहती हैं कि जितना भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसको लैब टू लैंड, लैब से उसको लैंड तक ले जाएं, मतलब जमीनी हकीकत में लेके जाएं, और उससे कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो जिसको कि पेटेंट कहते हैं, पेटेंट फाइलिंग वगैरह कहते हैं या कॉपीराइट्स कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी रिसर्च फंडिंग की जा रही है उसका सोशल ऑडिटिंग आजकल बहुत होता है कि जो पैसा किसी फंडिंग एजेंसी ने, गवर्नमेंट ने लगाया या कॉर्पोरेट ने लगाया
या प्राइवेट एजेंसीज ने लगाया, तो वो किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया और उसका सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट हुआ। तो प्रोजेक्ट राइटिंग और जो पेपर लिखना है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि वो आपका जिस पे भी टॉपिक पे आप काम करने जा रहे हैं उसका आपको थॉरो सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पे आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल स्टेटस उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या है, स्टेट कंट्री वाइड उसका स्टेटस क्या है और स्टेट वाइड उसका स्टेटस क्या है, और जिस एरिया में आपने प्रपोज किया स्टडी एरिया में वहां पर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्रोजेक्ट राइटिंग सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि इट्स अ सब्जेक्ट नॉलेज एंड स्किल, क्योंकि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट लिखते हैं तो उसमें हम लोग बहुत डिटेल में थीसिस फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते हैं, बड़ा क्रिस्प करके बहुत छोटे फॉर्म में हमारे को मैक्सिमम 20 to 25 पेजेस में हमारे को उसको समराइज करना होता है, और जो फॉर्मेट पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी का दिया होता है उसमें जो हमारा ओरिजिन प्रोजेक्ट का कैसे हुआ इंट्रोडक्शन डिफाइन करना होता है क्लियरली, और उसके बाद हमारे को जो परफॉर्मा दिया होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी नॉवेल्टी क्या है या वो डिफरेंट कैसे है, उसमें फिर आप क्या ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं, उसको टाइमलाइन में कैसे अचीव करेंगे, आपको कौन से इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए या आपकी कौन सी एजेंसी है, फिर बजट आपका रिक्वायरमेंट क्या है, और आपने कौन से एक्सपर्ट्स को इसके लिए इससे कनेक्ट किया अपने आप को, और रेफरेंसिंग कैसे हुई। तो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। जैसे प्रोजेक्ट टाइटल टॉपिक शुड बी वेरी क्लियर एंड रिफ्लेक्ट द नोवेल्टी, ये पेपर लिखने में भी और ये प्रोजेक्ट लिखने में भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं फिशरीज या जूलॉजिस्ट हूँ, तो बेसिकली तो मैं जूलॉजी के कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मुझे अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना है, क्योंकि जो आजकल जितने भी फंडिंग एजेंसीज हैं वो आपसे कॉन्सेप्ट पेपर मांगती हैं जो कि 2 से मैक्सिमम 3 पेजेस में जाता है। उसमें वो बेसिकली पूछते हैं आपसे कि आप इस प्रोजेक्ट जो प्रपोज एरिया है उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट को करेंगे। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक आ जाता है, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग या ऑनलाइन उसका इवैल्यूएशन होता है। तो बीइंग एज ए इवैल्यूएटर तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि जो प्रोजेक्ट टाइटल लिखा है वो इतना क्लियर होना चाहिए जिस और वो उसकी मेथोडोलॉजी तक क्लियर हो जाए। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि फिश डाइवर्सिटी ऑफ दून वैली उत्तराखंड इंडिया, एक टॉपिक ये है, और अगर मैं इसको दूसरे ढंग से लिखता हूँ डाइवर्सिटी स्पीशीज कंपोजिशन स्टेटस एंड कंजर्वेशन ऑफ फिशेज ऑफ दून वैली, तो क्लियरिटी जो है सेकंड वाला है उसमें क्लियरिटी ज्यादा है कि उसमें एग्जैक्टली जिसने जो प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहा है वो क्या करना चाहता है। तो सेकंड वाले में जैसे क्लियरिटी है कि वो फिशेस की डाइवर्सिटी देखेंगे, स्पीसीज कंपोजिशन देखेंगे, पर्टिकुलर जो वहाँ पे फौना मिल रहा है या फ्लोरा मिल रहा है उसका स्टेटस क्या है, और उसको किस तरीके से कंजर्व करना चाहिए या कंजर्वेशन मेजर्स हैं। तो ये टाइटल ज्यादा क्लियर है रादर देन फर्स्ट टाइटल से, तो क्लियरिटी इसमें ज्यादा है। तो आई रिक्वेस्ट कि ऐसे ही जब आप पेपर लिखते हैं तो आपका टाइटल इतना क्लियर होना चाहिए कि उससे आपके पेपर का मैसेज बिल्कुल थॉरोली जाए, और जिससे कि जो भी रिव्यूअर्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा टाइम इस चीज पे समझने में ना लगाया जाए कि ये जो जिन्होंने प्रपोज किया है प्रोजेक्ट को व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू। सो फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टॉपिक शुड बी क्लियर एंड नोवेल्टी मतलब कि ये एकदम यूनिक होना चाहिए आपका। और सिलेक्शन ऑफ सेकंड है सिलेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम विच क्लियरली डिफाइंस द गैप एरिया। जैसे कि अब आपको पता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट को आपने प्रपोज किया है या आप कभी अपनी रिसर्च थीसिस बनाते हैं या सिनॉप्सिस बनाते हैं, तो आप उसमें एक गैप एरिया दिखाते हैं कि पास्ट जो रिसर्चर्स थे उन लोगों ने रिसर्च के ये एस्पेक्ट्स लिए, परंतु जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ उसमें ये एरिया नया है, तो दिस एरिया इज न्यू। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो कुछ न्यू चीज को लेके उस ऑब्जेक्टिव्स को लेके हम लोग उस प्रपोज करते हैं। तो ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जैसे कि फिश डाइवर्सिटी ऑफ चक्रोता हिल्स एक टॉपिक है,
और फिश डाइवर्सिटी ऑफ टिहरी डैम रिजर्वायर उत्तराखंड। ये तो जैसे कि आपको पता है कि टिहरी डैम इज ए कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया, तो इसमें जो रिसर्च की है वो कंपैरेटिवली कम करी गई है, तो आपके पास ज्यादा चांसेस होंगे कि जो प्रोजेक्ट आपको मिले इसमें गैप एरिया क्लियरली डिफाइन कर पाए, और गैप एरिया अगर आप क्लियरली डिफाइन कर पाते हैं तो आपकी हाफ ऑफ द बैटल इज ओवर। ऐसे ही जो अब आप पेपर लिखते हैं तो जिस एरिया में कंपैरेटिवली कम काम हुआ उस एरिया को आप अपना स्टडी एरिया चूज करें, और गैप एरिया को आप क्लियरली डिफाइन करें कि हम लोग ये पेपर क्यों लिख रहे हैं या हम लोग ये रिसर्च को क्यों करना चाहते हैं, उसमें यूनिकनेस क्या होगी। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। और तीसरा है कि जब हम प्रोजेक्ट लिखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जो प्रोजेक्ट होता है जैसे वो किसी टाइम फ्रेम में होता है, 2 साल का, 3 साल का, मैक्सिमम 4 इयर्स का, तो हमारे को टाइम पीरियड को ध्यान में रखना होता है। आप बहुत उत्साहित हो जाते हैं तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को उसमें लिख देते हैं जो कि उस टाइम पीरियड में अचीवेबल नहीं होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लिखें तो 3 से 4 केवल ऑब्जेक्टिव लिखें जो कि उस टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम में आप कंप्लीट कर पाएं। और अगर आप लंबा कुछ कमिटमेंट करते हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको टाइम पीरियड में वाइंड करना हो। और इम्पॉर्टेंट चीज और है कि शुड नो द एक्सपर्ट्स वर्किंग ऑन कंसर्न फील्ड एंड ट्राई टू बिल्ड अप अ कम्युनिकेशन, पे ड्यू अटेंशन टू रेफरेंस। ये इम्पॉर्टेंट चीज इसलिए है कि जैसा आप, अगर मैंने आपको बताया कि मैं बायोडाइवर्सिटी, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी में काम करता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि हमारी फील्ड के जो इंटरनेशनली नोन एक्सपर्ट्स कौन से हैं, हमारे नेशनली नोन कौन से हैं और स्टेट के कौन से नोन्स हैं। आजकल तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीन्स हो गए हैं, ईमेल्स वगैरह हो गए हैं, तो आप आसानी से एक्सपर्ट्स से मिल सकते हैं, आसानी से अपनी बात को उन तक पहुंचा सकते हैं कि आई एम प्रपोजिंग दिस एरिया, इस फील्ड पे या इस टॉपिक पे मैं काम करना चाहता हूं, तो प्लीज गिव योर सजेशंस। तो अगर आप एक्सपर्ट से पहले ही आपका एक डायलॉग रहेगा तो बहुत आसान हो जाता है कि एक प्रॉपर फीडबैक सीनियर फैकल्टी या सीनियर साइंटिस्ट से मिलना, जिससे कि आप अपने प्रोजेक्ट को फाइन ट्यून कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को अच्छा बना सकते हैं। और एक और एडवांटेज जो इसका होता है कि कंट्री वाइड या नेशनल वाइड बेसिकली कुछ ही एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि इवैल्यूएशन वगैरह करते हैं प्रोजेक्ट्स का। तो अगर आपका पहले से उनके साथ डायलॉग रहेगा तो बहुत इजी हो जाता है कि आपका प्रोजेक्ट आसानी से थ्रू हो जाए और इम्प्रूव हो जाए। साथ साथ जो रेफरेंसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी फंडिंग एजेंसीज होती हैं वो आपको बताती हैं कि आपको रेफरेंसिंग किस तरीके से करनी है, या जब आप कोई पेपर लिखते हैं किसी जर्नल में तो आपको जर्नल गाइडलाइंस दी जाती हैं कि रेफरेंसिंग इस तरीके से करनी है। जैसे कि करंट साइंस एक जर्नल है, इंडिया का लीडिंग जर्नल, उसकी रेफरेंसिंग अलग है, XY नेचर है उसकी रेफरेंसिंग अलग है, और XYZ ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे जर्नल्स होंगे, उनकी अपनी एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है। तो उस गाइडलाइन को जरूर फॉलो करें और उसी तरीके से रेफरेंसिंग करें। इसका एडवांटेज क्या रहता है कि आप अगर परफॉर्मा को या किसी पेपर में जो गाइडलाइंस दी होती हैं उसको फॉलो करें तो बड़ा आसान हो जाता है कि आपका पेपर एक्सेप्ट हो या आपका प्रपोजल रिव्यू में ना जाए। रिव्यू में ना जाए मतलब टाइम पीरियड कम होता है, क्योंकि जितनी भी एजेंसीज होती हैं वो टाइम टू टाइम आपकी एक्सपर्ट्स कमेटीज को कॉल करती हैं और एक्सपर्ट कमेटीज उसको इवेलुएट करता है। तो इफ यू मिस अ चांस, कि एक बार आप चांस को मिस करते हैं तो 6 महीने के लिए आपका प्रपोजल जो है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। अगर ये चीजें आपने ध्यान में रखी हैं कि उनके परफॉर्मा को प्रॉपरली फॉलो किया है, देन यू आर हैविंग अ फेयर चांस कि आपको वहां पर कॉल किया जाए प्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट प्लीज। सो एक और आजकल परफॉर्मा में जो इम्पोर्टेंट चीज पूछी जाती है कि जो आप प्रपोजल कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कंट्री को, स्टेट को और सोसाइटी को कैसे बेनिफिट करेगा। इसका मतलब हुआ कि आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया था, अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो जो हम लोग चीज लैब में कर रहे हैं तो वो लैंड तक कैसे पहुंचेगी, कॉमन मासेस तक कैसे पहुंचेगी। तो ये क्लियरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट फंडिंग होती है, जैसा मैंने बोला कि उसका सोशल ऑडिटिंग होता है, तो सोशल ऑडिटिंग मतलब सोसाइटी में उसका कैसे बेनिफिट हुआ। अगर आप इस चीज को क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं
अपने प्रोजेक्ट्स में, तो यू स्टैंड अ फेयर चांस कि आपको आपका प्रपोजल आसानी से थ्रू हो जाए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि जो बजट आप मांग रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि जैसे आपने अगर कोई प्रोजेक्ट कभी लिखा हो, या स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, फैकल्टी मेंबर्स तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि बजट जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दो हेड्स, मेजर हेड्स होते हैं। रिकरिंग मतलब होता है, जैसा कि मैंने बताया, कि उसमें आप मैन पावर के लिए पैसा लेते हैं, कंज्यूमेबल्स कंज्यूम करते हैं जो चीज आपको अगर फील्ड वर्क करना है तो उसके लिए आपको ट्रेवल के लिए पैसा चाहिए, कंटीजेंसी होती है, और इंस्टीट्यूशनल जो सपोर्ट आपको मिलता है। जैसे आप अपने कॉलेज से अगर प्रोजेक्ट को फॉरवर्ड करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको कॉलेज एक लैब देता है जिसमें कि बहुत सारी चीजें, फैसिलिटीज, आपको स्पेस मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, आपको मैन पावर का होता है, तो वो कॉलेज इसको यूटिलाइज करता है। इसी तरीके से जो नॉन रिकरिंग है, इक्विपमेंट्स और एसेसरीज, वो नॉन रिकरिंग आता है, वो वंस टाइम आपको मिलता है, एक बार मिलता है। उसके लिए आपको बहुत सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोजेक्ट के टाइम देने होते हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं या उसका प्राइस लिस्ट है उसको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ रखें, जिससे कि जो फंडिंग एजेंसी है उनको क्लियरिटी हो जाए कि ये जो इक्विपमेंट इन्होंने प्रपोज किया है ये किस मेक का है, या इसकी टेंटेटिवली कीमत कितनी है, जिससे कि उन्हें आसानी हो जाती है आपका फंड को सैंक्शन करने में। तो इम्पोर्टेंट है जैसे कि फेलोशिप्स जो हैं, आपको फंडिंग एजेंसीज के वेबसाइट में जाकर आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये फंडिंग एजेंसी की फेलोशिप क्या है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं। जैसे नेट क्वालिफाइड हैं या नॉन नेट क्वालिफाइड हैं, उनकी फेलोशिप में डिफरेंस है, तो आप उस तरीके से इक्विपमेंट का, जैसे मैंने बताया, कि आप उनका पहले से ही प्राइस लिस्ट ले सकते हैं। और जो भी आपने पैसा प्रपोज किया है उसका एक ड्यू जस्टिफिकेशन होना चाहिए। और जैसा मैंने बोला कि हर फंडिंग एजेंसीज का अपना परफॉर्मा रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको आप केयरफुली पढ़िए और उसको अकॉर्डिंगली भरिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पेपर लिख रहे हैं, चाहे आप प्रोजेक्ट लिख रहे हैं। रिव्यू द प्रपोजल केयरफुली बिफोर फाइनलाइजिंग। आप मतलब फाइनलाइज करने से पहले उसको केयरफुली पढ़ें, 3 बार खुद ही पढ़ें। जैसे जनरल रूल है कि आप किसी भी पेपर को या किसी भी सिनॉप्सिस को या किसी भी चीज को लिख रहे हैं, तो आर्टिकल को, तो 3 बार आप उसको फाइन ट्यून करते हैं, हाथ से लिखेंगे, टाइप करेंगे, फिर उसको एक बार उसकी जो मैनस्क्रिप्ट है उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, और फिर उसको रिव्यू करेंगे। इट्स बेटर कि आप जब आप अपने हाथ से लिख लेते हैं तो किसी थर्ड पर्सन को, एक्सपर्ट से आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कीजिए, या अपने सीनियर फैकल्टी मेंबर से एस्टेब्लिश कीजिए, या जो एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट का उससे बात कीजिए, उनको दिखाइए कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। वो जो इंप्रूवमेंट सजेस्ट करें फिर आप उसको कंपेयर करें, अपने जो ओरिजिनल आपने ड्राफ्ट लिखा उसमें इनकॉर्पोरेट करें वो चीजें। और 2-3 बार अगर आप किसी से सजेशन लेते हैं तो वो बेटर हो जाता है। और इसके साथ साथ जब आप प्रपोजल बनाते हैं या पेपर बनाते हैं, तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज देखी जाती है कि ये पायरेसी तो नहीं है। पायरेसी इन द सेंस कि आपने कुछ सीधा किसी के उससे टॉपिक को कॉपी तो नहीं कर दिया है, या किसी का प्रपोजल तो नहीं ले लिया है, क्योंकि फंडिंग एजेंसीज और जो एस्टेब्लिश जर्नल्स हैं वो सबसे पहले पायरेसी चेक करते हैं। और केवल आप रिपीट कर सकते हैं, केवल 8 to 10% या मैक्सिमम 18% तक आपका विद रेफरेंसिंग प्रॉपर साइट करके किसी का पेपर को आप साइट करके उसको आप लिख सकते हैं। पर आप एज सच किसी का पेपर को नहीं कॉपी कर सकते हैं, या किसी के कॉन्सेप्ट्स को ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर वो करना है तो आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में या और जगह ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसको रेफरेंसिंग करें, मतलब उसका नाम दें प्रॉपरली, और वो कहाँ से पब्लिश हुआ है उसका लिटरेचर को आप प्रॉपरली दें। तो व्हाट आई मीन कि आप इसको थॉरोली फाइनलाइज करने से पहले प्रपोजल्स को रिव्यू करें, और जहाँ पे भी अथॉरिटी के सील और सिग्नेचर की जरूरत है, जैसे आपके प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप यूनिवर्सिटीज में हैं तो आपके वाइस चांसलर्स हैं, आपके HODs हैं, और आप वहाँ पर अपना सील सिग्नेचर करवाएं और डिजायर नंबर पर उसको सबमिट करें। कॉपीज 10 कॉपीज होती हैं, 5 कॉपीज होती हैं, और आजकल तो ऑनलाइन सबमिशन हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिफोर फाइनलाइजिंग आप इसको केयरफुली पढ़ें और उनके इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो करें। आपका जब
प्रपोजल के लिए आपको बुलाया जाता है किसी भी फंडिंग एजेंसीज में, तो आपके पास एक डिफाइंड टाइम होता है कि आपको जैसे मेरे पास डिफाइंड टाइम दिया गया कि आप 1 घंटा में अपनी बात को वाइंड अप करें, तो मेरे पास एक आपको मॉक एक प्रेजेंटेशन करना चाहिए अपने सीनियर्स के साथ, अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ, या स्टूडेंट्स हैं तो अपने मेंटर के साथ, कि आप उसको जितनी भी पीपीटीज आपने बनाई हैं टाइम पीरियड के साथ उसको मैच करें, और उसको मैच करने के बाद एक मॉक प्रेजेंटेशन दें, जिससे कि आपको समझ आ पाएगा कि आप उस टाइम फ्रेम में, जो गिवन टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स 20 मिनट्स का प्रेजेंटेशन होता है, उसमें आप अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को सभी को बता सकें, प्रेजेंट कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, जो आपको जिसमें आपको एम्फेसिस करना चाहिए, वो होता है ऑब्जेक्टिव्स, कि जो आपने ऑब्जेक्टिव्स प्रपोज किए हैं जो बिल्कुल क्रिस्प होने चाहिए। बहुत 3 से 4 मैंने बताए हैं कि 3 से 4 होने चाहिए, इससे ज्यादा आपको प्रपोज नहीं करना चाहिए। और मेथोडोलॉजी, जो स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी आप फॉलो करेंगे उसको कैसे करेंगे, नॉन मेथोडोलॉजी है तो उसका रेफरेंसिंग होना चाहिए, या आपने कुछ अपनी इनोवेटिव मेथोडोलॉजी बनाई है, जैसे ह्यूमैनिटीज में है कि आप क्वेश्चनर बेस्ड पब्लिक परसेप्शन जो आप लेते हैं वो किस तरीके से लेंगे, क्वेश्चनर बेस होगा, तो वो क्वेश्चनर आपको पहले से ही तैयार होना चाहिए, जिससे कि आपको एक्सपर्ट्स की राय भी मिल जाए। तो इस तरीके की चीजें। और जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि क्वेश्चंस एक्सपर्ट आपसे क्वेरी करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बड़े ध्यान से सुने कि वो क्या कह रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग का कोई गैप नहीं होना चाहिए। और सपोज वो आपसे आपके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो प्लीज ओपन अप दैट पर्टिकुलर स्लाइड। That time when you are discussing with them, open up that particular slide so that आपको भी बहुत इजी रहेगा कि आप क्या बताना चाहते हैं, और जितने एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी समझने में बहुत आसानी होगी कि ये क्या मैसेज हमें कन्वे करना चाह रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप प्रेजेंट करते हैं तो क्वेरी को अपनी सपोर्टिव जो स्लाइड है उसके साथ आप उनकी क्वेरी को सेटिस्फाई करें। इसके साथ जैसे मैंने बताया कि बजट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका कोई प्रोजेक्ट आपके पास आ जाता है फंडिंग एजेंसी से, तो आपको एक सेपरेट इसका अकाउंट बनाना होता है। सेपरेट अकाउंट बनाने के पीछे मंशा ये होती है कि जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसके जितने भी हेड्स उन्होंने डिफाइन किए हैं, मैंने जो पीछे बताया रिकरिंग और नॉन रिकरिंग हेड्स में, उसमें आपको पैसा जो खर्चा करना है उसी लिमिट पर करना है जो लिमिट उन्होंने डिफाइन की हुई है। और आपको हर ईयर के एंडिंग में, अगर आपके पास 3 साल का समय है, तो हर ईयर एंडिंग में आपको जो भी आपने इंटरेस्ट उस पर अर्न किया है, आपको एक भारत कोष के बारे में आप सभी जानते होंगे। भारत कोष एक फंड वो खुला हुआ है भारत सरकार में, आपको वहां पर पैसा जमा करना होता है जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया है। और तो पहले ऐसा होता था कि जो इंटरेस्ट अर्न होता था वो कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट जो आपकी इंस्टॉलमेंट आती उसमें एडजस्ट हो जाता था, पर अब ये प्रोसेस खत्म कर दिया गया है। जितना भी इंटरेस्ट आपका बचता है वो आपको एक भारत कोष एक एजेंट वो फंड बना है उसमें आपको सबमिट करना होता है, और उसकी ऑनलाइन डिपॉजिशन स्लिप मिलती है, जिसको कि आपको अपने जो अकाउंट सेक्शन है उनके के पास रखना होता है। और जब आप फाइनली आप अपना अकाउंट सेटल करते हैं तो उसके साथ आपको ये देना होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप प्रोजेक्ट अपना रन कर रहे हैं, in between the project, if you wish to utilize the sanction amount from one head to another, अगर आप in between project में ऐसा फील करते हैं कि आपके पास कंटीजेंसी में पैसा कम है और आपके पास ट्रेवल हेड में पैसा ज़्यादा है, तो आप जो फंडिंग एजेंसी है उनके परफॉर्मा होते हैं जिसमें कि आप फंड को रीअप्रोप्रिएट करा सकते हैं। पर रीअप्रोप्रिएशन कराने के लिए आपको फंडिंग एजेंसीज की परमिशन चाहिए होती है, और ये लेनी भी चाहिए, जिससे कि जब आप फर्दर उसको अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट या अकाउंट सेटल करें तो उसमें क्लियरिटी रहे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इन बिटवीन जब आप जज करते हैं कि ये पैसा मैं इस हेड से ना करके इस हेड में मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप फंडिंग एजेंसी की परमिशन ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, अपने ऑब्जेक्टिव्स टारगेट जो आपने टाइमलाइन दी थी उसके अनुसार आपने कर लिया, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप ईयर एंडिंग में भी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट के टाइम भी करेंगे। कि सबसे पहले आपको एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है
वो जमा करना होता है कि जो पैसा आपको फंडिंग एजेंसी ने दिया उसको आपने जो उनके अनुसार जो फंड हेड्स थे उसके अनुसार आपने खर्चा किया, और वो ड्यूली साइंड होना चाहिए आपके अकाउंट सेक्शन से, कंपिटेंट अथॉरिटी से और चार्टर अकाउंटेंट से। ये सभी उसमें सिग्नेचर करते हैं। और इसके साथ साथ आपको ईयर एंडिंग में आपको टेक्निकल रिपोर्ट देनी होती है। जब आप 3 साल का आप अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं तो आपको एक फाइनल टेक्निकल रिपोर्ट देनी होती है, उसे FTR कहा जाता है, जिसमें कि जो आपने ऑब्जेक्टिव्स प्रपोज किए थे उनको आपने कैसे अचीव किया, और उसमें पूरा डिफाइन करते हैं कि आपने क्या मेथोडोलॉजी ली और इसमें यूनिकनेस क्या है, या आप इसको किस किस एरिया में फर्दर रेप्लिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द फंडिंग, अबाउट द प्रोजेक्ट राइटिंग बेसिकली। जो वर्कशॉप और सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज हैं, मेरी आवाज सभी को आ रही है प्लीज? इज आई एम ऑडिबल प्लीज? आ रही है सर, आ रही है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज और ट्रेनिंग आप लोग पीरियडिकली करते रहते हैं, उसमें भी परफॉर्मा होता है फंडिंग एजेंसी का अपना। उसमें आपको क्लैरिटी से और पिकिंग अप द टॉपिक, जैसा मैंने बताया कि आप किसी भी टॉपिक पे आप अगर ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, वर्कशॉप करवाना चाहते हैं, उसका टॉपिक बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या प्रपोज कर रहे हैं। उसके साथ अगर आप एक्सपर्ट लिस्ट प्रपोज करते हैं कि सपोज आप कोई सेमिनार कर रहे हैं तो उसमें कौन से एक्सपर्ट्स आएंगे, आपके कितने सेक्शन होंगे, कितने सेशंस में उसको डिवाइड करेंगे, उसके एक्सपर्ट्स कौन होंगे, चेयरपर्सन कौन होगा, उसका रिपोर्टियर कौन होगा, तो इसको इस अगर आप प्रपोजल में ये क्लैरिटी से डिफाइन करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। और वो जो प्रोग्राम है उसमें टारगेट ऑडियंस क्या होगा, बेनिफिट कैसे होगा, तो अगर आप ये सारी चीजें, और अगर आपने किसी और फंडिंग एजेंसीज में अप्लाई किया है या उनका आपको सैंक्शन ऑर्डर मिला है तो आप उसको लगाएंगे, तो ये स्ट्रेंथन हो जाता है कि किसी और फंडिंग एजेंसी ने आपका प्रोजेक्ट को पहले रिव्यू कर लिया है। दूसरी फंडिंग एजेंसी के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि एक मैकेनिज्म ऑलरेडी हो चुका है, एक रिव्यू पहले हो चुका है आपके प्रोजेक्ट का, तो दूसरी फंडिंग एजेंसीज के लिए आसान होता है कि आपको वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग के लिए वो प्रपोजल मैचिंग ग्रांट के साथ दे दे। फंडिंग अपॉर्चुनिटीज ये इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स तो इससे वेल एक्वेंट होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई लाइक टू रिक्वेस्ट देम कि आप इसको जरूर सुने, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अब स्टूडेंट रिसर्चर्स के लिए भी आ रही हैं, दोज हु आर परसुइंग देयर रिसर्च। और बहुत सारे जो अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वुमेन साइंटिस्ट स्कीम भी बहुत सारी इंट्रोड्यूस की हैं कि अगर आपके ब्रेक इन करियर है, सपोज आप किसी कारण से अपना करियर को परस्यू नहीं कर पाए हैं, तो और इन बिटवीन इफ यू फील सो कि आप अपना रिसर्च या को कंटिन्यू कर पाते हैं, तो वुमेन साइंटिस्ट स्कीम है, उसको आप कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जिससे कि आप फंडिंग ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे वर्ल्ड बैंक है, ये दोनों के लिए है, साइंस और ह्यूमैनिटीज के लिए। वर्ल्ड बैंक से आप ले सकते हैं, ADB जिसे कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूनेस्को जो है, और यूरोपियन कमीशन है, US फिश वाइल्ड लाइफ सोसाइटी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इम्पोर्टेंट है, आपने सुना होगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं, और बड़े साहब तो इससे वेल एक्वेंट होंगे कि उन्होंने मेरे ख्याल से काफ़ी FAO के प्रोजेक्ट्स किए हैं। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे, इसमें एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, यूथ एक्सचेंज, यूथ रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं। फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ECMOD एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, और ये जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको फंड करते हैं। फिर जो यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट है, और DBT, DST जो फंडिंग मेजर फंडिंग एजेंसीज हैं साइंस की, वो बायलैटरल प्रोग्राम करती हैं कि आप दो कंट्री के बीच में, सपोज इंडिया और जर्मनी है, इंडिया और जर्मनी या XYZ कंट्रीज हैं, तो उनके साथ आप बायलैटरल प्रोग्राम्स अपने कर सकते हैं। जो नेशनल मेजर फंडर्स हैं वो हैं बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, GB पंत
अल्मोड़ा में एक इंस्टीट्यूट है, ICFRE है, और मिनिस्ट्री में खुद बहुत सारी डिपार्टमेंट हैं, डिविजन्स हैं जो कि फंड करते हैं। जैसे EIA एक डिवीजन है उनका, और गंगा एक्शन प्लान एक डिवीजन है, बहुत सारे डिवीजन है, बायोडाइवर्सिटी एरिया है। तो आप उसको रिसर्च के लिए भी ले सकते हैं, और एक्सटेंशन मतलब जैसे आप वर्कशॉप करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उसको भी ले सकते हैं। तो रिसर्च एंड एक्सटेंशन के लिए वो दोनों के लिए फंड करते हैं। ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है। यस सर, यस सर। Mic is working. Network problem, sir. सर नेटवर्क चला गया ऐसा मालूम होता है। डॉक्टर उनियाल दोबारा कनेक्ट करेंगे। डॉक्टर उनियाल प्लीज आप दोबारा कनेक्ट करिए। और शेयर स्क्रीन कहाँ से, यहाँ से है शेयर स्क्रीन। दिखेगा आप ग्रीन कलर का, ग्रीन एरो दिख रहा है, शेयर स्क्रीन लिखा हुआ। आ रहा है शेयर। यस आ गया। आई एम सॉरी फॉर दिस ग्लिचेस। नो प्रॉब्लम सर, कंटिन्यू कीजिए सर। दैट्स ग्रेट। तो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, आपने अभी इस पेंडेमिक में बहुत सुना होगा। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जितनी भी एडवाइजरीज हैं वो ही इसको कर रहे हैं, और इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो ही इज वेल नोन टू वी पीपल ऑल्सो कंटिन्यूसली। जो एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जो हमारा चैप्टर है, उत्तराखंड चैप्टर, इसके प्रोग्राम हमने आपके कॉलेज में भी किए थे, तो हमारे यहाँ फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। प्रोफेसर भार्गव साहब है, तो जिनकी आप एडवाइजरी अभी हम लोग इस पेंडेमिक में फॉलो कर रहे हैं। तो वो भी एक फंडिंग एजेंसी है मेडिकल रिसर्च के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है, और डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट, ऑल्दो वो यहाँ के लिए फंड नहीं करती है, जितने भी कोस्टल एरियाज है वहाँ के लिए करती हैं। और ये मैंने एक अलग से इसको मार्क किया हुआ है, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्च, ICSSR। जितने भी ह्यूमैनिटीज के प्रोजेक्ट्स हैं वो आप यहाँ से और UGC से आप फंडिंग इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, चाहे ONGC है, चाहे टाटाज हैं, ये बहुत सारा फंड देते हैं अपने सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जितना भी वो अर्न कर रहे हैं पैसा या प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसका कुछ परसेंटेज वो सोशल बेनिफिट के लिए जरूर लगाएं। तो ये सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी आप लोग पैसा ले सकते हैं इन सभी एजेंसी से। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट फंडिंग एजेंसी है। वो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और फैकल्टीज मेंबर के लिए और स्टूडेंट्स के लिए और विमेंस के लिए बहुत सारी फंडिंग वो देते हैं। उसके बारे में आपको ब्रीफली मैं बताऊंगा कि जैसे R&D प्रमोशन के लिए तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, SER भी उसको कहा जाता है। उसके यहाँ जैसे आपके यहाँ भी शायद आपके कॉलेज में भी FISC जो है,
funding for improvement of science and technology infrastructure in universities and other higher education institute, ये आपके कॉलेजेस में आई होगी। नैनो मिशन एक आपने सुना होगा, नैनो टेक्नोलॉजी 10⁻⁹, ये नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी रिसर्च अब हो रही हैं वो नैनो बेस हो रही हैं, और इसके लिए फंडिंग आ सकती है, या इसका सेंटर आप इस्टेब्लिश करते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नैनो टेक्नोलॉजी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज, ये इंपॉर्टेंट है कि आप एड ऑन करना चाहते हैं अपने यहाँ कुछ फैसिलिटीज, सेंट्रल फैसिलिटीज एड ऑन करना चाहते हैं, तो आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अप्रोच कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो मैं पहले आपको बता रहा था, वुमेन साइंटिस्ट प्रोग्राम, WOS कहते हैं, इसमें ABC कैटेगरीज हैं, और जो WOS प्रोग्राम है इसमें वुमेन साइंटिस्ट जो होती हैं उनको अपना करियर परस्यू करने के लिए रिसर्च फंडिंग देती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, तो उनको एक फंडिंग दी जाती है। साथ साथ जिन्होंने अपना PDF करना चाहते हैं, जो पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप करना चाहते हैं, उनके लिए अलग से प्रोविजन है। और एक चीज मैंने आपको बोली थी कि बहुत सारी वीमेंस हैं ड्यू टू XYZ रीजन, वो अपना करियर को आगे नहीं ले जा पाती हैं, तो अगर गैप है आपके उसमें करियर में, तो आपको WOS एक स्कीम है जिसमें कि आप अपने करियर को शुरू कर सकते हैं, और अप टू इसमें मेरे ख्याल से 55 और 60 ईयर से अपर एक लिमिट है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिन्हों का ब्रेक इन करियर हो गया है वो इसको अपना रिवाइव कर सकते हैं। और यंग वुमेन साइंटिस्ट स्कीम्स हैं, आप इसको ब्राउज करेंगे, या फैकल्टी मेंबर्स हैं जो जिनकी एज इसके लिए फिट इन होगी, तो वो इसका बेनिफिट अपने यहाँ ले सकते हैं। और इंस्पायर एक प्रोग्राम है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। बेसिकली इसके स्टूडेंट्स आपके यहाँ भी आते होंगे मेरे ख्याल से, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसा प्रिंसिपल सर से मेरा इंटरेक्शन होता है तो आपके यहाँ काफी स्टूडेंट्स आते हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए, स्कूल के लिए अलग है, कॉलेजेस के लिए अलग है, और फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी है। तो फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स जो हैं इसका लाभ ले सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और बहुत सक्सेसफुल स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। DST में एक बोर्ड है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। इसमें ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च के लिए मेजर फंडिंग होती है। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस जो है, आपको अगर कोई लेबोरेटरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लेबोरेटरी आपने NABL एक्रीडेशंस करवाने हैं, तो आपको ये फैसिलिटेट करेंगे। पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, जिसमें कि फॉर्चुनेटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे ये पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर है जो फैसिलिटेट करता है रिसर्चर्स को, या मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और क्लाइमेट चेंज प्रमोशनल प्रोग्राम्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का C डिवीजन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। C डिवीजन जो है बेसिकली आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उसके लिए इनकरेज करते हैं, और वो इसमें फंडिंग भी देते हैं। और एक है नेशनल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड। तो इन दोनों के माध्यम से, जैसे आपके यहाँ एग्रीकल्चर डिवीजन आप लोगों का बहुत अच्छा है, तो आप इनको इस फंडिंग को वहां पर टैप कर सकते हैं। आप अपने ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन डिवीजन आपका होगा, उसके माध्यम से आप यहाँ से फंडिंग ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज है कि जो साइंस पॉपुलराइजेशन है, जैसे मैंने बोला कि लैब से जो लैंड तक आपको करना है, तो आप पॉपुलराइज करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं। कोई भी हार्डकोर रिसर्च होती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन CSIR, ICR, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक एक्सटेंशन डिवीजन होता है, जो कि हार्डकोर रिसर्च वो करते हैं, बड़े सिंपल शब्दों में लोगों तक कनेक्ट करना। तो उसको कनेक्ट करने के लिए साइंस पॉपुलराइजेशन या साइंस कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट साइंस अब डेवलप हुई है, कि कोई भी हार्डकोर साइंस को, जैसा कि आपको याद होगा कि प्रोफेसर यशपाल साहब जो UGC के चेयरमैन भी रहे, वो एक साइंस बेस्ड एपिसोड्स करते थे टर्निंग पॉइंट के नाम से, या फिर माइक पांडे साहब ने उसको आगे फर्दर किया। तो ये लोग बेसिकली साइंस कम्युनिकेटर्स से, जैसे कि मैं स्टूडेंट्स था तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा, तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली उनसे इंटरेक्ट करने की। तो बड़े सिंपल शब्दों में वो जवाब देते थे, साइंस को बहुत सिंपली उससे समझाते थे, और डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स होते थे वो कोट करते थे।
तो साइंस कम्युनिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कम्युनिकेशन ही अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप फैकल्टी मेंबर्स हैं तो आप अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट तभी कर पाते हैं जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हों। तो कम्युनिकेशन स्किल हर एक फील्ड में चाहिए, पर्टिकुलरली साइंस में इसलिए चाहिए क्योंकि अब जो हमारी सोसाइटी है वो साइंस बेस्ड सोसाइटी है। हम साइंस को स्कूल के बाद परस्यू करते हैं कि नहीं करते हैं, या उसमें डिग्री करते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर साइंस समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे अभी हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं तो साइंस के बहुत सारे एस्पेक्ट इस पे जुड़े हुए हैं। एंड्रॉइड फोन है हमारा, या हम लोग कुछ इंटरनेट या इंट्रानेट या ईथर बेस्ड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे हमारी बात एक दूसरे तक पहुंचे, या सैटेलाइट बेस्ड इंफॉर्मेशन कैसे हमारे पास पहुंचे। तो साइंस हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। साइंस समझने के लिए जो पॉपुलर साइंस है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी मेंबर्स भी हैं कि कुछ एक साइंस बेस्ड मैगजीन्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जैसे कि स्टूडेंट एक विजडम, एक छोटी सी 5 या 15-20 रुपए की मैगजीन आती है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें सिंपल से साइंस बेस्ड आपको एक्टिविटीज भी मिलती हैं। और अगर आप रिसर्चर्स हैं तो डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट की, उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा रहेगा। इंटरनेशनल डिवीजन जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कॉपरेशन विद मेनी कंट्रीज, जैसे बायलैटरल प्रोग्राम्स हैं, आप बायलैटरल प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल टाई अप भी कर सकते हैं। आप मेरे को प्लीज बता दीजिएगा जब वाइंड अप करना हो तो प्लीज। नहीं आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सर ने इकोनॉमिक्स में सर रिसर्च करते हैं और मैंने सर की रिसर्च को बहुत क्लोजली देखा है, पेपर्स भी देखे हैं। तो बहुत सारे इंटरनेशनल टाई अप्स गुरु राम राय कॉलेज ने, मेडिकल कॉलेज ने किए हैं। तो उसको आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंटरनेशनल डिवीजन से भी ले सकते हैं। इसमें 2 फेडरल मिनिस्ट्रीज जो 2 कंट्री की हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और फिर आपको सीरीज ऑफ प्रेजेंटेशंस देने होते हैं दोनों कंट्री के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। ऐसे ही हम लोगों ने जर्मनी के साथ यहाँ पे काम किया था, वाटर पे हम लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली रिवर बैंक फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी में। तो वो ये बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने इसको यूटिलाइज किया है अपनी रिसर्च फंडिंग को बढ़ाने के लिए, और अपने जो बेसिकली मैन पावर है, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं या फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो इसका लाभ ले सकते हैं। और कॉपरेशन विद बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे सार्क है या नाम NAM है, उनको जैसे फिर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स है UNDP के है या यूनेस्को के, आप उसको भी इंटरनेशनल डिविजन्स के थ्रू ले सकते हैं। स्टेट लेवल पे मैं फंडिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उनकी नोडल एजेंसी है हम लोग स्टेट में, और इसी तरीके की साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल्स हर स्टेट में है, वो नोडल एजेंसियां हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो हम बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टेट स्पेसिफिक बेनिफिट के लिए करते हैं। इससे ऐसे स्टेट बायोटेक्नोलॉजी काउंसिल है, यूसर्क है उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, और यूसर्क है स्पेस साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर। तो ये फंडिंग एजेंसीज है जिनके साथ आप टाई अप कर सकते हैं एक्सटेंशन एक्टिविटीज के लिए। पार्शियली फॉरेस्ट भी आपको फंडिंग करता है, या तो आपको प्लांटेशंस प्लांटिंग मटेरियल दे सकते हैं, या आप उनके साथ भी कुछ प्रोग्राम्स को इनिशिएट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि हर जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इनोवेशन फंड होता है। इनोवेशन काउंसिल जो भारत सरकार की है, अगर आपको याद होगा सैम पेट्रोडा साहब का अगर आपने नाम सुना हो, एक बड़े एमिनेंट साइंटिस्ट, द देन प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी उनको लेके आए थे। सैम पेट्रोडा US में थे और इनोवेशन के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। तो उन्होंने एक इनोवेशन काउंसिल शुरू की थी भारत में, और भारत सरकार में है वो, और वो स्टेट्स को फंड करती है इनोवेशन के लिए। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स इनोवेटिव काम करते हैं तो आप अप्रोच कर सकते हैं इनोवेशन फंड्स के लिए, स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट्स में भी। So with this, I complete my first session of this project writing and funding opportunities. Intellectual property right जो important topic अब है कि जितनी भी हम लोग रिसर्च करते हैं उसको जो हमारा बौद्धिक संपदा, इसको बौद्धिक संपदा अधिकार भी कहते हैं, कि जो भी हम लोग ने रिसर्च करी, अपना माइंड को यूटिलाइज किया, ग्रे मटेरियल यूटिलाइज किया,
then how we can get benefited out of that. When government of India or any corporate, any private agencies putting money on particular research group, then how that particular group will get benefited, how the country will get benefited if it is international, how the national level पे हम लोग कैसे benefit करेंगे या state level पे कैसे benefit करेंगे. तो ये aspects मैं कोशिश करूंगा कि आपको briefly बता पाऊं. जैसा कि ये फिगर में आपको क्लियर होगा कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, हम हिस्टोरिकली इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं. ये इस फिगर से आपको क्लियर होगा, फोटोग्राफ से क्लियर होगा कि गुरु जो द्रोणाचार्य थे, उन्होंने एकलव्य से अपना अंगूठा लिया था. तो क्या था, बेसिकली एकलव्य ने उनसे कोई ऐसी एजुकेशन फॉर्मल नहीं ली थी, केवल उनके एक मूर्ति रखी थी और उससे इंस्पायर होकर उसने पूरी धनुर्विद्या सीखी थी. पर जब उन्हें पता चला कि ये मेरे जो प्रिय शिष्य हैं उससे भी अच्छा ये कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला उससे कि अंगूठा आप अपना मेरे को गुरु दक्षिणा में दे. तो ये हिस्टोरिकली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल गुरु जी का उन्होंने यूज किया, उस इन ल्यू ऑफ दैट वो उनको कुछ दक्षिणा दे. तो यही हिस्टोरिकली प्रोस्पेक्टिव रहा होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में. फिर इसको ग्लोबली बहुत इस पर काम होता रहा. 18th सेंचुरी में इस पे बहुत काम हुआ, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. तो हमारी कंट्री में ये बहुत पहले से प्रैक्टिस होते आ रही है. इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप साइट्स में भी जा सकते हैं, और बहुत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे बहुत सारी बुक्स भी हैं. ग्रेजुअली आप अगर इसमें इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो बहुत अच्छा फील्ड है. स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा एक फील्ड है कि आप इसमें अपना रिसर्च भी करें और अपना करियर भी परस्यू कर सकते हैं. इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग किसी भी थिंकिंग माइंड, हम लोग किसी भी चीज को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि ये चीज मैं बनाने वाला हूँ. जिसने भी एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं इस तरीके से बल्ब को बनाऊंगा या कौन सा मटेरियल इसमें मैं यूज करूंगा. उन्होंने कितने हिट एंड ट्रायल किए होंगे और फिर उन्होंने फाइन ट्यून किया होगा उस मेथोडोलॉजी को. तो कुछ सोचा होगा, कुछ उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, नंबर ऑफ टाइम्स वो फेल हुए, फिर उन्हें पता चला कि मेरे को ये मटेरियल यूज करना चाहिए, टंगस्टन यूज करना चाहिए जिसका कि हाई टेम्परेचर में वो मेल्ट नहीं होता है, मेरे को ग्लास इस तरीके का यूज करना चाहिए. और उन्होंने उसको एक मेथोडोलॉजी को स्टैंडर्डाइज किया, जैसे कि हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं कि हम उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं अपनी मेथोडोलॉजी को. तो उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया और एक प्रोडक्ट बनाया. तो आइडिया था, उसको नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करके उन्होंने कुछ प्रोडक्ट को क्रिएट किया. और ऐसी क्रिएशन बहुत सारी चीजें आपको क्रिएट हुई दिखती हैं. जैसे कि आपने देखा कि ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, पोर्ट्रेट में डिजाइन बनाया हुआ है. ये कुछ प्रोडक्ट आपको दिख रहा है कि, और ये आपको कुछ ड्रिंक दिख रही है और लेमन बेस, और ये कुछ आपको क्रिएशन दिख रहा है बुक का. तो इस तरीके की चीजें जो है, क्रिएटिविटी, आप बहुत सारी चीजों को क्रिएट करते हैं तो उसका प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने कुछ चीज इन्वेंट की और या जैसे कि हम ड्रग्स का ही हम लोग लेते हैं कि बहुत सारी कंपनीज हैं, बरोज वेलकम है, कैडिला जाइडस, जो आजकल जो ड्रग बना रही हैं या वैक्सीन बनाने में बहुत क्लोज हैं. तो वो कंपनी उसमें इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है. वो पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं तो उन्होंने R&D में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, और अब वो क्या चाहते हैं कि जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका वो पेटेंट कराएं उस प्रोडक्ट को अपना. उन्होंने जो भी, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में बनाएंगे या वैक्सीन बनाएंगे, उसको वो पेटेंट कराएंगे. और पेटेंट कराने के बाद जितने भी यूजर्स होंगे, या तो वो उनसे लाइसेंस लेंगे, लाइसेंस इन द सेंस कि वो पैसा कॉमर्शियल एक्टिविटी में उन्हें कुछ पैसा देंगे, या फिर वो उनसे कंप्लीट लाइसेंस ले सकते हैं कि उनकी पूरी टेक्नोलॉजी ले ली, या पार्शियल लाइसेंसिंग होगी. ये अंडरस्टैंडिंग होती है. जैसे कि आप जब बुक लिखते हैं तो एक रॉयल्टी, आपने शब्द सुना होगा रॉयल्टी, कि रॉयल्टी, इतनी रॉयल्टी दी जाए, 5%, 10%, 20% रॉयल्टी. तो ये सब चीजें आपके जो आपने इंटेलेक्चुअल प्रोड्यूस किया उसका प्रोटेक्शन है बेसिकली. राइट साइड में ये जेंटलमैन आप सभी पहचानते होंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब हैं. ये सबसे पहले साइंस परस्यू करने से पहले पेटेंट असिस्टेंट थे, और इन्होंने पेटेंट को प्रैक्टिस किया. और इन्होंने बताया कि जब मैंने पेटेंट को समझना शुरू किया तो मेरे बहुत सारी चीज़ों को क्लियरिटी हुई
कि साइंस में हम लोग किस प्रकार से इनोवेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ही सेज दैट इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। आप नॉलेज तभी गैदर करेंगे जब कुछ इमेजिन करेंगे, कुछ बनाएंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे, तभी आप किसी चीज को, मेथड को फाइन ट्यून कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट को अच्छा बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, बौद्धिक संपदा है, ये टेरिटोरियल राइट है जैसे, और आईपीआर जो है ये लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी जैसा मैंने बताया कि जो आपने बौद्धिक संपदा अधिकार, आपने कुछ भी बनाया, वो लीगल चीज इसलिए जुड़ी है कि वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज से जुड़ी है। उसमें आप रॉयल्टी दें या आप अपने जो इन्वेंशन है, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें या आप लाइसेंसिंग करें, तो इसमें क्या है, इसमें सारी की सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी जुड़ी है। तो जहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी जुड़ी रहती है वो लीगल एंटिटी रहता है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि आईपीआर जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप लाइसेंसिंग भी कर सकते हैं। ये मोनोपोली राइट्स होते हैं। मोनोपोली मतलब जैसे कि आपने बनाया तो ये आप ही तक सीमित रहेंगे। अगर आप चाहते हैं, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजें, एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो भी यूनिवर्सल लॉज हैं, जैसे कि ग्रेविटी का लॉ है या कुछ है, या लॉ ऑफ न्यूटन के लॉ हैं, तो आप उसको कभी भी आप आईपीआर के अंदर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज हैं, तो उनको आप नहीं कर सकते हैं। बाकी आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, जैसे कि अगर आपके पास सैमसंग का एक मोबाइल है एंड्रॉयड बेस्ड, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, उसमें 490 पेटेंट्स हैं, उसमें बहुत सारे पेटेंट्स हैं कि उसकी की कैसी होगी, पैड कैसा होगा, उसमें सॉफ्टवेयर कैसा होगा। 490 मतलब वो कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों ने उसको प्रोडक्ट को बनाया होगा और उसको एक जगह असेंबल किया, और उन्होंने अपना जो लाइसेंस है या रॉयल्टी है वो सैमसंग ने उनको वन टाइम पे कर दी। तो ये अरेंजमेंट्स भी होते हैं। और आईपीआर जो लॉज होते हैं उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसको टाइम टू टाइम आपको रिन्यू करना पड़ता है, और ये हैंड टू हैंड होता है ट्रेड और कॉमर्स के साथ। जैसा मैंने बताया कि ये ट्रेड्स एंड कॉमर्स इंपॉर्टेंट इसका एक एस्पेक्ट होता है। आईपीआर जैसे मैंने बताया कि फिक्स टाइम के लिए दिया जाता है, और इसको आप किसी भी कंट्री में एंजॉय करते हैं। जैसे कि इंडिया में आपको पेटेंट करना है तो इंडिया में आप पेटेंट करेंगे, और बाहर पेटेंट करना है तो उसको पीसीटी एप्लीकेशन करते हैं, उसके लिए आपको अलग पेटेंट्स करना होता है। आईपीआर के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, मोस्टली कंफ्यूजन होता है कि पेटेंट्स ही शायद आईपीआर है, पर ऐसा नहीं है। आईपीआर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार के पेटेंट एक कंपोनेंट है, कॉपीराइट एक कंपोनेंट है, ट्रेडमार्क एक कंपोनेंट है, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक कंपोनेंट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक कंपोनेंट है, लेआउट डिजाइन इंटीग्रेटेड सर्किट, प्लांट वैरायटी ब्रीडर्स है, और प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन। आपको मैं बताना चाहूंगा ये सारे के सारे आईपीआर के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। और प्लांट वैरायटी, जैसे आपके यहाँ एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, तो प्लांट वैरायटी जितने भी आप ब्रीडर्स होते हैं वो हिट एंड ट्रायल करते हैं, जो जितने भी वैरायटीज को डेवलप करते हैं, तो आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, और प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन मतलब कि आप, जैसे कोको कोला है, कि कोको कोला जो बनती है या पेप्सी बनती है, उसका जो नोन फॉर्मूला है वो नोन नहीं है, वो अनडिस्क्लोज्ड है। उस कंपनी ने इसको डिस्क्लोज ही नहीं किया है कि कितना कंसंट्रेशन में शुगर डालते हैं, कितने में पर्टिकुलर सिरप डालते हैं, कितना एसेंस डालते हैं, और कितना उसमें डिस्टिल वाटर यूज होता है। तो इसका भी प्रोटेक्शन होता है। ये लीगल एंटिटीज हैं कि पेटेंट का जो था 1970 में एक्ट था, और वो जैसा आपको पता है जो एक्ट होता है वो टाइम टू टाइम उसको अमेंडमेंट होता रहता है, रिवाइज होता रहता है। जैसे डिजाइन एक्ट है, आप पर्टिकुलरली कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसका 2000 में है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, और लेआउट डिजाइनिंग इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड प्लांट वैरायटी एक्ट। कॉपीराइट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिक वर्क में और सॉफ्टवेयर्स में आपको कॉपीराइट मिलता है, पेटेंट नहीं मिलता है। आर्टिस्टिक, जैसा आपने देखा होगा कि
कोई किताब होती है उसमें सी इन सर्कल रहता है, सी इन सर्कल मतलब कॉपीराइटेड है, पर्टिकुलर ऑथर का, पर्टिकुलर कंपनी का। और जैसे कि ये प्रेजेंटेशन भी अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं सी इन सर्कल अपने उस प्रेजेंटेशन में लिखूंगा, तो इसका मतलब ये कॉपीराइटेड है। अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो मुझसे पहले परमिशन लेनी होगी। और जैसे कि आप बहुत सारे जर्नल्स में रिसर्च पेपर भेजते हैं तो आपको कॉपीराइट उन्हें देना पड़ता है, आपको कॉपीराइट ट्रांसफर करना पड़ता है कि जो आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने करी है वो आप उन्हें ट्रांसफर करते हैं। ऐसे सिनेमेटोग्राफिक जो फिल्म होती है, साउंड ट्रैक्स होते हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हैं, इस तरीके की चीजें हैं जो वो कॉपीराइट में होती हैं। और जो कॉपीराइट है वो 60 इयर्स लाइफ या 60 इयर्स के लिए दिया जाता है, फिर आपको इसको ये पब्लिक डोमेन में आ जाता है। पब्लिक डोमेन में आने का मतलब कि वो पब्लिक फिर इसको यूज कर सकती है। डिजाइन है कि आप पर्टिकुलर डिजाइन बनाते कंप्यूटर का कि फ्लैट स्क्रीन रखना है या कर्व्ड स्क्रीन रखना है, सीमलेस है। और ये जो है 15 इयर्स के लिए इसको डिजाइन में आप रजिस्टर करते हैं। इस तरीके की चीजें अलग सी, जैसे कैटल है उसका डिजाइन अलग है, आप कोई प्रोडक्ट है उसका डिजाइन अलग है, कैटल है उसका डिजाइन अलग है। इस तरीके की चीजें हैं जो कि आप डिजाइन में उसको रजिस्टर कर सकते हैं। और सेमी कंडक्टर्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जो हैं कंप्यूटर्स में जो हम लोग यूज करते हैं उसको आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। इसका जो टर्म होता है वो 10 इयर्स का होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स एक इंडिविजुअल राइट नहीं होता, बाकी तो इंडिविजुअल राइट मिल सकते हैं जिसने इन्वेंट किया है। जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं वो एक कम्युनिटी राइट है या सोसाइटी का राइट होता है। जैसा आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे दन बनता है, ट्राइबल एरियाज में दन बनता है जो कि कारपेट होता है, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का एक रजिस्टर हो रहा है जीआई के अंडर में, तो वो किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलके वो पूरी सोसाइटी को मिलता है। जैसे कर्नाटका में अगर बैंगलोर में आपने विजिट किया होगा तो जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के हेलो 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 मेरी आवाज जा रही है? हेलो, आई एम ऑडिबल प्लीज? Yes, sir, you audible. Yes, sir. ओके, थैंक यू। तो आपने कर्नाटका में अगर देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे लकड़ी के खिलौने हैं, उसको जीआई मिला हुआ है, मतलब उस प्रोडक्ट को वही कम्युनिटी बना सकती है। अगर मेरे को उनके प्रोडक्ट्स या वो खिलौने मेरे को लकड़ी के बनाने हैं तो मेरे को उस सोसाइटी को एक लाइसेंसिंग फी देनी पड़ेगी। और जितने टाइम में वो हमारे को वो लाइसेंसिंग फी 10 इयर्स के लिए 20 इयर्स के लिए देते हैं, तो तब तक मेरे पास राइट रहेगा कि मैं उसको यूज कर पाऊंगा। तो ऐसे ही हमारी स्टेट में भी जो धन है जो कि ट्राइबल एरियाज में बनता है उसके लिए जीआई हो गया है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको कि जो कि पाइपलाइन में है, जैसे कि पश्मीना शॉल है कि वो जब जीआई रजिस्ट्री हुआ तो वो इंडिया में हुआ, तो और जैसे बनारसी साड़ी है तो वो उस पर्टिकुलर जो सोसाइटी है वहाँ पर रजिस्टर हुआ, उसका बेनिफिट उस सोसाइटी को मिलता है। और अगर हम उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो वी हैव टू पे अ लाइसेंस फी टू दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। 10 इयर्स के लिए ये होता है और इसको रिन्यू कर सकती है दैट पर्टिकुलर सोसाइटी टाइम टू टाइम एक फी देके। पेटेंट जो होता है मैंने बताया कि क्या कहते हैं, राइट अवॉर्डेड बाय अ कंट्री फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें ग्लोबल पेटेंट नहीं होता है, ग्लोबल पेटेंट के लिए आपको अलग से पेटेंट करना पड़ता है। और हमारी कंट्री में 4 पेटेंट ऑफिस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो हमारा नॉर्थ का ऑफिस है वो दिल्ली बेस है, वहां पर हमारे को पेटेंट एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि पेटेंट कराने से पहले जो आपका प्रोडक्ट है वो 3 चीजों बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉवेल्टी होनी चाहिए, वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, वो कहीं रजिस्टर नहीं होना चाहिए, नोन नहीं होना चाहिए, उसका इनोवेटिव स्टेप होना चाहिए और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए। जैसे कि मैं कोई पेन बनाता हूँ वो जेल बेस है, उसकी काफी पेन्स में प्रॉब्लम आती है कि जो उसकी जेल है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होती है। तो अगर मैं ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करता हूँ कि जिसका जेल फुल्ली यूज हो पाए तो मैं उसको उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा सकता हूँ। पर मेरे को ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक परफॉर्मा होता है उसमें देनी होती है, उसको कहते हैं हम लोग इनिशियल फाइलिंग। उसमें इनिशियल फाइलिंग में
हमारे को अपना पूरा जो इन्वेंशन है उसको डिफाइन करना होता है। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी पेटेंट करने से पहले अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में नहीं रखें, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, किसी न्यूज़पेपर में ना दें और पब्लिकली उसको पब्लिश भी ना करें, उसको कहीं पब्लिश भी ना करें पेपर को। इनिशियली अगर आप फाइल कर लेते हैं, इनिशियल फाइलिंग होती है, आप उसको इनिशियल फाइल कर लेते हैं, आपको एक नंबर ग्रांट होता है, उसके बाद आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, उसको आप पब्लिक डोमेन उसको आप यूज कर सकते हैं। और 18 महीने में आपको जो है पेटेंट है उसको फाइनल ग्रांट मिल जाता है। उसमें जो भी अटॉर्नी होते हैं वो आपको कॉल करते हैं और अपने जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले करने के लिए बोलते हैं और फाइनली आपको एक पेटेंट ग्रांट हो जाता है जिसको कि आप अपने आप यूज कर सकते हैं, उसको कॉमर्शलाइज कर सकते हैं। ये सिंपल चीजें हैं कि कोक है उसका जो लिड है उसका डिजाइन जो है ऊपर है वो पेटेंटेड है। जितनी नीडल्स हैं, असॉर्टेड नीडल्स हैं, वो हर एक नीडल्स पेटेंटेड है कि उसका साइज कितना होगा और किस साइज की होगी, किस मटेरियल की होगी, ये सब चीजें पेटेंट होती हैं। जैसे फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जितने सर्जरिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप पेटेंट करवा सकते हैं। और पेटेंट में भी आप करवा सकते हैं कि उसको उसका जो हैंडल है वो कैसा होगा, उसकी लेंथ कैसी होगी, इन सब चीजों को आप साइंटिफिकली आप इतने सारे इस सर्जरी में इतने सारे पेटेंट्स आप ले सकते हैं, उसके हैंडल में ले सकते हैं, उसके कर्व में ले सकते हैं, उसके स्क्रू में ले सकते हैं, ये सब चीजें पेटेंटेबल हैं। ये फाइलिंग का है, इसका डायरेक्टली हम लोगों के लिए यूज नहीं। ये एक प्रोसेस है कि जो फाइलिंग होती है उसमें क्या होता है, प्रायर आर्ट्स होती हैं, उसको बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे पायरेसी को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे पेटेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं। उसी तरीके से पेटेंट करने से पहले हम लोग सर्च करते हैं कि ये कहीं पे पहले पेटेंटेड तो नहीं है मटेरियल या प्रोडक्ट, अगर है तो वो फुलफिल नहीं करता है कि वो पेटेंट हो, अब उसको कहते हैं पेटेंट सर्च। बहुत सारे डेटाबेस अवेलेबल हैं ओपन सोर्सेज में भी और पेड भी हैं जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर आपको अपना पेटेंट फाइल करना होता है और पेटेंट फाइल करने के बाद जो पेटेंट डिपार्टमेंट है पेटेंट पब्लिश करता है और उसके बाद आपको एक नंबर मिल जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। ये डिटेल में है कि आपको परफॉर्मा में क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से कि आपको पेटेंट, आप अपने पेटेंट करना चाहते हैं तो आप उसको प्रिलिमिनरी स्टेज में आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ पे कि ये कहीं पेटेंटेड तो नहीं है। इन्फ्रिंजमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि आपका प्रोडक्ट लिया और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना लिया। तो क्योंकि उस पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया कि कैडिला जाइडस अभी जैसे कोई ड्रग बना रही है या इसके कोविड के लिए, तो वो उसमें बहुत सारा रिसर्च के लिए कंपोनेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो वो उस प्रोडक्ट को पेटेंट कराती है। अगर दूसरी कंपनी उन्हीं की टेक्नोलॉजी को लेके रिवर्स इंजीनियरिंग करती है तो उसमें वो उनको स्यू कर सकते हैं, जिसे कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट मतलब उनका जो शेयर है, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन शेयर था, उसको अगर वो लोग मार्केट से लेते हैं तो वो कोर्ट में जाकर उनसे वो पैसा रिकवर कर सकती है। या अगर उस पर्टिकुलर कंपनी को जिसने जो उनकी प्रोडक्ट को रेप्लिकेट करना चाहते हैं वो उनसे लाइसेंसिंग करें या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और फिर वो उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो इसको कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट, आप किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अब हमने समझा है कि इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार के। तो इंडिया में भी ग्लोबली पेटेंट जो है वो बहुत नोन है और बहुत सारे जो राइट्स मैंने डिस्कस किए हैं वो नोन्स हैं। उससे उनको प्रोटेक्ट करके ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज बहुत सारा पैसा कमाती हैं। तो इंडिया ने भी एक नेशनल आईपीआर पॉलिसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016 में बनाई थी, जिसको कि कुछ समय पहले ही उसको लॉन्च किया गया। तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि टू प्रमोट स्टार्टअप्स, जैसा कि आपने सुना होगा कि स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और इनोवेशन बेसिकली कि हम लोग सबके सब बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, सबके सब नौकरी नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि जो हमारे पास अर्ली स्टेज में अपॉर्चुनिटीज हैं कि उसमें हम लोग कुछ स्टार्टअप्स अपना शुरू करें या कुछ इनोवेशन करें।
अभी जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस हुई है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने यही बोला है कि जैसे विदेशों में है कि आप सभी को हायर एजुकेशन में जाने की जरूरत नहीं है इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो अर्ली स्टेजेस में बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिससे कि इनिशियल फेजेस में ही अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक सेटिस्फैक्ट्री जॉब मिल जाएगा और वो एक वेल ट्रेन्ड मैन पावर भी बन पाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि है बहुत बड़ी डिग्री लें और फिर उसके बाद कुछ इनोवेशन या स्टार्टअप्स में जाएं। So with this I like to ये मेरा सेकेंड लास्ट स्लाइड है कि इसमें इम्पोर्टेंट मैसेज ये देना चाहूँगा जो रिसर्चर्स हैं या जो इनोवेटर्स हैं या जो स्टार्टअप्स करना चाहेंगे, उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्लीज़ बी पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो यू विल बी अ क्रिएटिव पर्सन, जैसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स आजकल बोल भी रहे हैं। डिस्कवर योर वैल्यूज कि आपकी पॉजिटिविटी क्या है या आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो आपकी ओरिजिनलिटी होगी। और जो आपके ड्रीम्स हैं वो आपके विजन होंगे। विजन मतलब हमेशा कहते हैं कि ब्रॉडर विजन, आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि जैसे कि भारत सरकार हमेशा से 20 साल का एक विजन बनाती है। हम कहते हैं कि 20 साल बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग प्रपोज करते हैं कि 20 साल बाद हमें ये अचीव करना है। या जैसे हमने फर्स्ट क्लास शुरू करी होगी तो हमारा एक विजन रहा होगा कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे फोर्सेस में जाना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे ब्यूरोक्रेट बनना है। तो एक हमारा विजन था, तभी उसको हम लोग अचीव कर पाए। तो ये तीन चीजें रहेंगी तो वी कैन अचीव बेटर, वी कैन बी ए बेटर रिसर्चर, बेटर इनोवेटर, बेटर फैकल्टी एंड बेटर स्टूडेंट्स। So this is the last slide. I like to conclude that nowadays we are having a ample of opportunities to carry out our research and extension activities. We must take advantage and strengthen our society through these agencies. R&D program जो है वो बहुत important है। R&D programs should be multidisciplinary. जितने भी फंडिंग एजेंसीज हैं वो कहती हैं कि हम लोग सोलोज में काम नहीं करेंगे या वाटर कंपार्टमेंट उसमें काम नहीं करेंगे। इट्स बेटर कि बहुत सारे डिविजन्स एक साथ आए। जब मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, हार्डकोर रिसर्च करना चाहता हूँ, तो मेरे साथ इकोनॉमिस्ट भी जुड़े, मेरे साथ सोशोलॉजिस्ट भी जुड़े, मेरे साथ इनोवेटर्स भी आए, तो इन तब वो कंप्लीट एक प्रोजेक्ट होगा और उसकी सोशल एडिटिंग होगी, तो एक वो कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा। तो नाउ इट्स बेटर कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स को आप करें, जिससे कि फंडिंग एजेंसी के लिए भी आसान है और आप लोग भी एक दूसरे की नॉलेज को शेयर कर पाएंगे। एंड आईपीआर प्रोटेक्शन इश्यूज मस्ट बी प्रैक्टिसेस, क्योंकि आईपीआर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी इसलिए कि आप कुछ क्रिएट करते हैं तो उसको आप प्रोटेक्ट कीजिए, और आप जब आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो आप बहुत सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज से जुड़ पाएंगे और आप अपनी सोसाइटी को, अपने आप को भी स्ट्रेंथन कर पाएंगे। विद दीज वर्ड्स आई लाइक टू थैंक all each and everyone present over here. I like to thank Professor Borai Saab that given me an opportunity, Madam Pandey for nicely conducting, Dr. Madhu Singh Madam, and all my dear friends, faculty members of Shri Guru Ram Rai College, and all participants. Thank you very much for giving me an opportunity. और अगर आपके कोई questions हैं तो please I'll be happy to answer all that. Thank you very much. Thank you so much, sir, for this informative and enriching session that you've given us today. Now I would like to open the forum for further questions and queries. So in case any participant has any kind of query, so he or she may ask sir, and I think he'll be glad to answer you. All the participants, can you hear me? Hello. 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 Good afternoon, yes, sir. Yes. I'm Shweta Singh from Zoology Department, and my question is: I often find good pictures on my related research on mosquitoes on internet. Can I use them in on my own research? Does it make a difference if I make sure to give credit to the source, or is it a problem if I'm using flowchart or life cycle for my research work? Does it make any plagiarism? Madam, I got your point. Two things are there, two answers. First, I like to
answer that for academic purpose, if you are using any copyrighted material, any book, any journal, you have to take a permission from the concerned editor or concerned author that I am using this thing for my academic purpose. So in that purpose, no one charge, because many times I got a request from many of the authors or that we want to use this photograph. So we are happy to share with us. So no charge for that, nothing. But you have to take a permission from that particular author. That is But one. sir, while writing a research paper, sorry to interrupt you, sir. While writing a research paper, we used so many pictures from internet, which was very good. But is it necessary to acknowledge them without having the source? True, I got your point. If you go through the guidelines of particular research journal, they used to say that for using any particular thing, either photograph or either any paragraph or anything methodology, either you have to acknowledge our journal or either you have to take a permission. Then you have to very clearly see if they are allowing you in their guidelines, then it's fine. You acknowledge the author and you acknowledge the journal, right? Give a proper referencing that you understand. You have to give a referencing author name, year, then topic and year of publications, okay? Or otherwise, if that particular journal or author says that no, you have to take a permission from me, then you have to write individually to that author or to that editorial board that yes, I need a permission for reproducing. Basically, a word is used, reproducing that. So you can reproduce only 10% of that. Otherwise, this will fall in a plagiarism, and then your paper, your thesis will not be accepted for further publication or for further process. Is it clear to you, madam? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, or koi? Any other? Anybody else who would like to put forward a question? One more question, please. Yes. Sir, as you very well explained in your lecture about the new area of work for research, I would like to work on mosquito control, basically the dengue mosquito control, that is Aedes mosquito breeding sites in our surroundings. Many researchers are using chemo control, some are using the plant products. I would like to use some biological species. Basically, it is a parasite, but many researchers are putting ethical issues. So my question is, sir, and I request you to please suggest me how can I minimize this ethical issue? Yes, madam, it's a very good question, because in biological research, two things are very important. If you are using any species in your research work, then ethics are there. Two things are there: ethics, and then if you are using animal, then you should have an animal house in your place. Yes, animal house having पूरी guidelines हैं इसकी सारी की सारी कि आपको animal house establish करना है, तो आपको उन्हें कैसे रखना है, जो कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस में आता है कि कैसे आपको उसकी एथिकली रखना है, उस जानवर को कैसे रखना है, आप कैसे ट्रायल कर सकते हैं, कितने डिग्री तक ट्रायल कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको बायो एथिकल सोसाइटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनसे लेना पड़ता है। और जैसे कि मैं अभी बताना चाहूंगा कि अभी आप सुन रहे हैं कि कोविड पेंडेमिक के लिए ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3 चल रहा है, ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, और इससे पहले एनिमल मॉडल पे ट्राई हुआ है। तो बायो एथिकल सोसाइटीज जितनी भी हैं वो सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं, उन प्रोटोकॉल को फॉलो करके ही आप इन सब एक्सपेरिमेंट्स को कर सकते हैं। तो फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर एनिमल हाउस इन योर प्लेस, एज इन नियर बाय पंतनगर हैविंग देयर एनिमल हाउस, you can collaborate with them, or otherwise you can do, but you need to know all the formalities for that. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you, madam. Yes.
If anybody would like to add to the existing topic or put forward any question? Yes, Dr. Pandey, may I say? Yes, ma'am. You're most welcome. Dr. Unyal, first of all, thank you so much for giving such a kind of lucid talk on such a complex subject, because IPR is a very, very detailed area which you have very nicely summed up in your presentation. And as a student of humanities and literature, I was thinking about the aspect that you already covered, copyright issue. And because students of final semester of PG, fourth semester students, they are supposed to write dissertations. And while writing their dissertations, we as supervisors guide them, advise them that whenever they are quoting from some text, from some novel, from some poem, they have to acknowledge the source. Because sometimes intentionally or unintentionally, they fail to acknowledge the source. And then it comes in the category of plagiarism. And you have already discussed that area in detail. And I'm so happy that students also, they must have benefited a lot from your illuminating talk, sir. This was my kind of which I wanted to say. Otherwise, I have no queries because you have already covered so many aspects of this IPR. Thank you, sir. I'd like to thank you, madam, also that number of times I got an opportunity to interact with you. और आप तो मेरे पड़ोसी भी हैं, तो thank you very much. जो initial phases में था तो आपसे ही मेरी बात हुई थी. So thank you very much, ma'am. And I think जैसे प्रिंसिपल सर हैं, आप लोग हैं, पूरी टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है. आप इस IPR इश्यूज को बच्चों को जब वो फाइनल ईयर्स में है जरूर 1-2 लेक्चर जरूर करिए. इससे बेनिफिट क्या होगा, जो भी जैसा आप कह रही हैं डेजर्टेशन, जब हम लोग उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं समझा पाएंगे कि उनको डेजर्टेशन में प्लेजरिज्म क्या है, पहले तो ये बच्चे को समझ आना चाहिए. और जैसे कि एग्रीकल्चर के हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा बनता है तो उसको पेटेंट कैसे करवाएं. क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अब आती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नेचुरली जब हम भी स्टूडेंट थे तो सबसे पहले जो हम डेजर्टेशन कर रहे हैं उसको हम एक रिसर्च आर्टिकल के फॉर्म में या रिसर्च पेपर की फॉर्म में पब्लिश करना चाहते थे, जो कि हमारे को करियर एडवांसमेंट में हेल्प करे. पर सबसे पहली चीज, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस यहाँ पे हम लोग देखते हैं, उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, वो एक अखबार में बड़ा सा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता देते कि हम लोगों ने ये किया. तो जब वो ये डिस्क्लोज कर देते हैं तो वो उसकी कोई यूनिकनेस और नोवेल्टी नहीं रहती है, वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है. तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम लोग स्टूडेंट्स को अच्छे से बता पाएंगे तो स्टूडेंट्स भी जितनी मेहनत करते हैं, आप जितने फैकल्टी आप लोग मेहनत करते हैं साथ में उनके, वो अगर कॉमर्शियल एक्टिविटीज में कन्वर्ट हो जाए तो हो सकता है वही बच्चा जो उसने पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया है वो एक कंपनी के माध्यम से बहुत सारी रॉयल्टी कमाए और एक अच्छा स्टार्टअप शुरू कर पाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. At the end of the program, I would like to thank Dr. D.P. Unyal for the very valuable, the relevant, and the very informative information that he has given to all of us today, and extending a vote of thanks to all the concerned people. Firstly, I take this opportunity to thank D.P. Unyal sir for being the resource person for the day and sparing his valuable time to grace this occasion with his presence. Secondly, I would be ever so thankful to our principal, Burai sir, who has always been a constant source of encouragement when it comes to organizing any academic event in the college. Next, I would like to appreciate and acknowledge the efforts of the mathematics department, who was from time to time giving their technical support to us when it was most needed. And lastly, but not least, I would like to thank all our fellow participants who have been here with us on this forum, and they have also given their time and been very patient listeners. Thank you all. With this, I will end this program here. Thank you very much for opportunity. Thank you very much, sir. Sir, thank you so much. Thank you so much for opportunity, and looking forward for more interaction, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. बहुत आनंद आ गया.
पढ़ के सुन के बहुत आनंद आ गया। सर आप लोगों को देख के आनंद आ गया। Thank you so much, sir. थोड़ा सा शुरू में कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई थी सर डॉक्टर साहब हम लोग सभी सीख रहे हैं पढ़लिया साहब, थैंक यू सो मच। जी सर, जी सर। इस सेशन Thank में you for हमारा looking सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है ये वाला जो आज हुआ है। आई थिंक इट इज मोस्ट वैल्यूएबल इवेंट व्हिच टुडे वी हैव डन। थैंक यू सो मच, इट्स सो नाइस ऑफ यू। It's my pleasure, sir. Thank you. Looking forward for interaction, sir. Thank you. हम सुनी मिलता ये मैंने हल्का दिया ना बीच में बाहर